اگر کچن کی صفائی کی بات ہے تو آبویسلی سب سے پہلے مجھے ہوتا ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ جتنی کیبنٹس ہیں نا تو میں مطلب میرا ہوتا ہے کہ اس کو نکالو صاف کرو. اندر بھی آپ اتنی صفائی کے باوجود بھی ہلکے ہلکے جالے پڑ جاتے ہیں جبکہ استعمال کے باوجود بھی یہ پلس ٹائلز کا مجھے ہوتا ہے کہ کیبنٹ مطلب میں اگر چشمہ پہن کے آ گئی کچن میں تو اس دن سب کی شامت ہے. میں بھی ایسی ہوں پہ صفائی میں پھر صبح سے لے کے جب تک میں لگی رہوں گی. کچن میں مجھے ہوتا ہے کہ رات میں جھاڑو لگا کر مسٹ ہے. کچن کے اوپر چولہا اگر روٹی بنی ہوئی ہے شام کی اور اس پہ وہ ہے تو میں کہتی ہوں نہیں کیڑے آ سکتے ہیں, میں خبردار. تو میرا ہوتا ہے کہ صاف ستھرا آرڈرز ہیں کچن. رات میں کبھی جیسے میں آ گئی اور دعوت سے وہ لڑکی سو رہی ہے تو میں خود لے کے نا پھر اسی بس جھاڑو لگاتی ہوں کہ نہیں کیوں مجھے ہے بے چینی. اب میں کہتی میں ایک دفعہ کہہ دیا نا تو وہ کرو, میں ڈانٹتی نہیں کچھ نہیں. پھر میرا میٹر گھومتا ہے. میں کہ جب میں تمہیں کہہ دیا ایک چیز کہ مجھے صفائی چاہیے تو چاہیے, اور یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ باجی خود اتنا لگ جاتی ہیں تو وہ جھاڑو پوچھا جو کچن کا یہ کچرا ہے وہ میں کہتی ہوں ڈیلی تھیلی صاف ہونی چاہیے. اندر کے آس پاس کی کیبنٹس کھولو تو وہ بھی نا اب خود سے کرو تو بہت ہوتا ہے. فریج کھولو تو مجھے بے چینی ہوتی ہے وہ چیزیں ٹیڑھی. میں کہتی ہوں تم لوگ تھوڑا سا اگر طریقے سے یار رکھ دو, حالانکہ ٹو مچ نہیں ہونا چاہیے. فریج کھولو تو سامنے چیزیں نا الائنڈ لگے. تو وہ کوشش کرتی ہوں کیونکہ دوسرا انسان نہیں کرتا. ٹک جاتی ہے پھر آپ کے پاس کیونکہ ہمارے تو آج کل ڈومیسٹک ہیلتھ اگر آپ زیادہ ان کو بولیں کہ صفائی وہ کہتی ہیں آپ کر لیں. نہیں بدتمیزی نہیں. ان کو پتا ہے کہ میں ان کو بالکل اپنی شبانہ کو تو بیٹی سمجھتی ہوں. سب کو دنیا کو پتہ ہے شبانہ میرا جو چوکیدار ہے اس کو ان کے ساتھ میں سب سے پہلے میں نے باربیکیو چھت کی جو کی ان کے ساتھ کی. ان کو مہینے میں ایک دفعہ میں جا کے ہم ڈنر کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ بالکل میرا گھر والا سسٹم ہے. یہ لائی وہ لائی تو بالکل وہ نہیں لگتا. ہاں ایک لمٹ ہے, بدتمیزی نہیں کرنا. بدتمیزی تو میں اب کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں نا شاید میاں کی اتنی ہم نے چیزیں برداشت کی نا تو اب مجھ سے بدتمیزی نہیں برداشت ہو سکتی. میں کہتی ہوں اب میں کسی کے ساتھ میں نہیں بدتمیزی کرتی, بہت پیار سے. مجھ سے کوئی بدتمیزی کرے گا تو میں اپنی بیٹی کو بدتمیزی مجھ سے بات نہیں کرنا. I will not talk to you. اپنی میں تمہیں دے دوں گی پیسے مجھ سے نہیں تو وہ نہیں ہے. I will not tolerate any kind of پیار سے کرنا ہے میں جان دینے کو تیار ہوں بٹ ناٹ بدتمیزی. تو صفائی سب بخور کوئی آیا تو میں کہتی ہوں بخور چلاؤ. مجھے ہوتا ہے کہ جلاؤ خوشبو آئے صاف ستھرا بس انٹر ہوں. مطلب میں اکیلے گھر میں بھی رہ لوں نا تو بس چیزیں نا خوشبو آنی چاہیے. اچھا میں چھوٹی سی بریک لینی ہے. آپ لوگ کی وجہ اتنے مزے کی گفتگو چل رہی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے بٹ آفٹر دی بریک. آفٹر دا بریک. اور ایک ہماری بہت ہی پیاری کالر کافی دیر سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود بھی ہیں, ناہید. ان کو شو میں ویلکم کہوں گی. السلام علیکم ناہید. ہیلو. اوہ ناہید کہاں چلی گئی؟ السلام, آپ کی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہیں ناہید؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناہید کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک اللہ کا کرم. آپ کی ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے. آپ کی محبت ہے اس لیے آپ کو پیاری لگتی ہیں. بتائیں کیا کہنا چاہیں گی, کیا شیئر کرنا چاہیں گی, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ آپ میرے سے مجھے فون پہ سنیں, ٹی وی پہ نہ دیکھیں. میرا سوال ہے کہ میرا ویٹ بہت زیادہ, مجھے اپنا ویٹ کم کرنا ہے. کل چلے یہ آپ کے سوال ویٹ کم کرنے کا, یہ میں ان سے لے لوں گی کہ ان کا خیال ایسے کیسے رکھتے ہیں. لیکن کل میں نے پورا شو اس پہ کیا بھی تھا. ہاں کل کا پورا شو بھی اس پہ تھا بٹ کوئی بات نہیں. چلے ہاں کوئی بات نہیں. آپ چلے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا ہم اس بریک پہ جانے سے پہلے کوئی بات کرتی کچن کے حوالے سے, کیونکہ خواتین جو ہے نا کچن کو لے کے بڑی
वो होती है, सेंसिटिव होती हैं। अच्छा, और यूके क्योंकि आप तो बाहर भी नहीं है, तो बाहर तो मेरी बहन जो अमेरिका में वो कहती है ये जो बर्तन है ना ये बच्चे देते हैं, कहती है पांडे बच्चे दे देंगे। अभी 2 रखे 10 होने के मुसलसल जिंदगी लगता है धोने में बर्तन गुजर जाएगी, ये बड़ा मसला होता है। आप वैसे अपने किचन में साफ सुथराई का कैसे ख्याल करती हैं? अब मेरे पास मदिया टाइम तो होता नहीं है कि हम साफ सुथराई का कुछ टाइम दें, लेकिन वो मेड आ जाती है सुबह, तो सुबह उसको जल्दी जल्दी बताती हूँ, फ्रिज में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं निकालता हूँ, ये कर दो ये कर दो, ये सफाई कर दो, यहाँ पे ये ग्रोसरी उस पर डाली हुई होती, डंकी हुई होती, तो मैं कहती हूँ आ जाओ जल्दी जल्दी, आधा घंटा 1 घंटा है तो जल्दी जल्दी ये कर लिया, मतलब हम जल्दी जल्दी करवाते हैं। या जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं फिर डिटेल में सफाई होती है कि सब कुछ साफ सुथरा सा हो, चीज़ें हों। और 6 महीने में 8 महीने में फ्यूमिगेशन, कॉकरोचेस नहीं होने चाहिए घर में, तो साफ सुथराई खुद ही रहती है, वरना एवरीडे तो सफाई अभी भी आप करती हैं उस वाक़े के बाद भी? उसके बाद मैंने नहीं की। हाँ, उसके बाद मैं डर गई। जो अब पता आप कहते हैं किसी ऑर्गेनिक तरीके से कर लें, अब मतलब बहुत फ्यूमिगेशन से तो भी बड़ा मसला हुआ था। पता उसके अंदर बेस्ट है गटर के अंदर ना, अगर नीचे का घर है, हाँ मगर फ्लैट्स हैं किसी के नीचे में, तो मतलब महीने का बांधा हुआ है कि एक तो चूहे की गोलियां और अलग से मिलता है, वो गटर लाइन में डाल दो ना, ढक्कन खोल के। अच्छा, मजाले पे कीड़े नहीं आते, वहीं से कीड़े आते हैं। नेचुरल आपको सोल्यूशन वेरी इजी, बेकिंग सोडा आप लें, अपने ड्रेन्स में डालें, उसके ऊपर आप डाल दें सिंपली विनेगर, थोड़ी देर वो एक होगा रिएक्शन होगा, उसकी वजह से वो जितना भी क्लॉग होगा ना सारा ओपन अप हो जाती हैं सारी ड्रेन्स। और उसके बाद आपने गरम गरम पानी, बॉइलिंग पानी लिया, हर ड्रेन में डाल दिया। मेरा तो रूटीन होता है, हमारा जो सिंक होता है ना ज्यादा, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो रेसिड्यूज होते हैं ना खाने के, वो वही स्मेल कर रहे होते हैं, हमें नजर नहीं आते हैं। लेकिन कभी कभी आप किचन में अक्सर लोगों के आप गए, बाकी बड़ी साफ सुथराई होगी, बिल्कुल चमक रही होंगी चीजें, लेकिन स्मेल होगी। तो उसकी वजह ये होती है कि जो ड्रेन्स होते हैं उनका हम ख्याल नहीं रखते हैं। तो वॉशरूम में भी अगर आप ये करते रहे, महीने में 1 दफा आप कर लें, तो अपने ड्रेन्स जो है वो सारे ओपन अप हो जाते हैं, सारे क्लॉग सारा निकल जाता है, गंदा। अच्छा, ये मैं करती हूँ इस तरह, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। तरीका यही होता है कि आपकी जो गटर लाइनें हैं ना मेन, आप फ्यूमिगेशन ना कराएं, क्योंकि मैं भी बहुत डरती हूँ। अच्छा, मैं फौजियों के इलाके में रहती हूँ, तो वहाँ हमारे घर ऐसे होते हैं कि बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, बड़े बड़े दरवाजे। तो सबसे पहले तो मैं ये करती हूँ कि सुबह उठते ही सारी खिड़कियाँ, सारे दरवाजे, इवन मेरी किचन में भी बहुत बड़ी खिड़की। वैसे कितना गर्मियों में मुश्किलात होती होंगी जब छिपकलियाँ आके कह रही बाजी में जालियाँ हैं, छिपकलियों से बहुत डर लगता है। इवन मेरे टेरेस पे भी छिपकली नहीं होती, क्योंकि वो मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, छिपकलियों का तो नाम मत ले। अच्छा, तो लेकिन हम दरवाजे खिड़कियां खोलते हैं, बट जालियां लगी हुई होती हैं, तो ना मच्छर आते हैं, ना मक्खियां आती हैं, ना कीड़े मकोड़े आते हैं अंदर। क्या करती हैं आप ऐसा? हाँ, अच्छा, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कि देखिए धूप बहुत जरूरी है। वो घर जहाँ पे थोड़ा सा भी खिड़की है, कुछ है, हमारे यहाँ क्या है कि बस पर्दे लगा के रखते हैं, बड़े बड़े घर हो या छोटे घर हो, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। मैं सब खोल देती हूँ, इवन आजकल ठंड है तब भी। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, मैं भी जब अपने घर जाती हूँ ना, तो मुझे पर्दे में कहती पर्दे खोलो, क्योंकि अम्मी कहती थी घर में धूप है, वरना नहुसत लगती है, वरना नहुसत होती घरों में, घर में सूरज की रोशनी आने दो। आपने पर्दे खोलने होते हैं, लोग उस वक्त बंद रखते हैं, तो सुबह आप जरूर खोलें, और एक मगरिब के वक्त आप पर्दे खोल के, पहले जब वो दिन बदल रहा होता है ना, उसके बाद आप भले पर्दे। अच्छा, डरते वो लोग हैं जो डस्टिंग नहीं करते हैं रोजाना, ये बात। अगर मैं अपनी बात करूँ, वही वाली बात जैसे अभी बता रही थी कि हम लोग सारी खवातीन वर्किंग हैं, हम लोग बिजी रहते हैं, तो मैंने इसके लिए ये हल निकाला, क्योंकि जब तक मेरे अपने सामने सफाई या चीजें ना हो तो मुझे चैन नहीं आता। तो मैं सुबह ही अर्ली मॉर्निंग, मेरे बच्चे 7:20 पे स्कूल जाते हैं, और 7:30 पे मेरी मेड्स आ जाती हैं, किचन वाली मेड अलग और सफाई वाली अलग, और वो लग जाती हैं। और मैं उस वक्त 10 मिनट में, मतलब मैं अपना चाय पी के, और मैं उनके साथ किचन को भी देख रही होती हूँ कि मतलब आप सोती नहीं, वरना यूजुअली खवातीन बच्चों को स्कूल भेज के सो जाती हैं। नहीं, सोना नहीं। देखिए, अगर मुझे काम करना है तो मुझे अपनी चीजों को मैनेज करना है। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा ये कहा कि देखो फातिमा, जो तुम्हें करना है तुम करो, बट कोई चीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ना बच्चे निगलेक्ट हो, ना घर, मतलब उनको, क्योंकि आपका तो काम किचन का भी है इतना ज्यादा। अब देखिए, बहुत सारी खवातीन, वही वाली बात कि एक गंजा इंसान बैठ के आपको कोई तेल की वो कर रहा है कि सर पे बाल उगाएंगे, वही वाली बात है ना। आप अपने घर से, अपनी पर्सनैलिटी से एग्जाम्पल सेट करते हैं। जब लोग मेरे घर आते हैं तो वो मेरे घर को देख के वो माशाल्लाह से खुश होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, हर चीज़ अपनी जगह पे प्रॉपर एक थीम के हिसाब से। हर कमरा मेरा जो है उसकी एक अलग थीम है, किचन की अलग थीम है, सफाई सुथराई चीज़ें जगह पे। अभी भी मैं रास्ते में आ रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कॉल की, उन्हें कोई चीज़ चाहिए थी फला, मैंने उन्हें कॉल पे बैठे बैठे बताया वो कबर्ड खोलें, उसकी वो वाली ड्रॉर खोलें, उसके अंदर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो मैं इतनी पर्टिकुलर हूँ, मैं कभी मेड्स के ऊपर नहीं छोड़ती कि वो चीज़ें। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें, घर की अलमारियाँ मैं खुद सही करती हूँ,
मेड्स को नहीं घुसाती, ठीक है। किचन में ग्रोसरी मैं खुद रखूंगी, चीजें मैं खुद रखूंगी, और फ्रिज उसकी सफाई मैं खुद करती हूँ, ठीक है। मेड से मैंने ये कहा कि निकाल के ये बाहर रख दो जैसे चीजें, बट उसकी सफाई पूरी मैं करूंगी। उसके ऑर्गेनाइजर्स निकाले, वो धुलवा लिए, बट वो करूंगी मैं खुद। मतलब ये वो चीजें जो मुझे लगता है कि ये बस मुझसे कनेक्टेड है। और मतलब मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, आज भी ये होता है कि मुझे कहीं पे भी जाना है, मुझे कुछ भी काम है, मैं पूरा दिन बिजी हूँ, घर पे खाना बना के मैं खुद आऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे कभी भी मेड के हाथ का खाना नहीं खाते, जिंदगी में उन्होंने कभी नहीं खाया। तो मैं सुबह अपनी जल्दी कर लेती हूँ, जैसे फजर के बाद। अब जैसे आज मुझे यहाँ आना था, सुबह उठ के मैंने अपने सारे काम कर लिए, मियाँ को नाश्ता दे दिया। ये सोचिए कि औरत को खुद को प्रूव करने के लिए कि आई कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड घर पे भी मैं मैनेज कर सकती हूँ। कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है अल्लाह ने, कितना स्ट्रॉन्ग मैनेज भी कर लिया है। हम मल्टीटास्किंग है, हम चीजें कर लेती है। मर्द नहीं कर सकते, मर्द नहीं। लेकिन बात सही है, वो अपने आप को मुसलसल प्रूव, और मुझे लगता है जो काम कर रही है ना घर से बाहर निकल के, उसको ज्यादा प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि लोगों को लग रहा था जब आप नौकरी के लिए बाहर निकले तो पता नहीं बात तो मेला लगा हुआ है। अगर आपका निगलेक्ट हुआ ना, तो लोग आपको कितना ब्लेम, आपके घर वाले खड़े होकर आपको ब्लेम कर रहे थे, और करो नौकरी, और करो। बच्चा नालायक निकला है, बच्चे को कंट्रोल जी, तो माँ की गलती है, बच्चे के बीमार हो गया या बच्चे को कोई मसला है, ठीक है, ये चीजें नॉर्मल चलती रहती है। इवन कि मैंने देखा कि बहुत सारी जगहों पर अगर बच्चों की शादी ना चले तो उसमें भी कहती दिखा है, क्योंकि माँ ने किया हर चीज एट द एंड ऑफ द डे वो माँ के सर पे लैंड। एक चीज पे तो हम क्रेडिट ले सकते हैं ना कि अल्लाह ने हमें इतनी सलाहियत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह चीजों को हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, मुझे वैसे बताएं कि जब आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं, जब उनके स्कूल के टाइम में आपको ले जाती हूँ, उनके कभी बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं, तो वैसे आप उनको लंच में क्या बना के देती थी, ये बताएं। नॉर्मली तो घर से ही जाता था लंच, और सैंडविचेस होते थे। और क्या बनाती है, जल्दी जल्दी होता है कि क्या चीज बनानी हो? बस वो चिकन को बॉईल करके मैं रख देती थी, और मेयोनीज के साथ उसको लगा के और केचप थोड़ी सी दे दी डब्बी में, वो खा लिया। थोड़े से फ्रूट्स डाल के दे दिए, और मिल्क दे दिया। मतलब कि जो हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है ना बच्चों को जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पिलाने का, ये बड़ा खतरनाक है। बाहर मैंने सीखा कि बच्चों को तो पता ही नहीं सॉफ्ट ड्रिंक्स है क्या, वो हर चीज के साथ मिल्क पीते हैं। सही है। फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, आपने उसको शेक बना के दे दिया बच्चों को, उस तरह की चॉकलेट मिल्क हो गया, बस वो चीजें होती थी। और वहां से भी वो जब आता था ना स्कूल में, जब छोटा था यहाँ पढ़ता था, तो वापसी में मेरे लिए भुट्टे के दाने ले आता था। मतलब उसको भी ये अमरूद, भुट्टे के दाने और ये जो अनार ये चीजें बड़ी उसको पसंद थी, तो मुझे भी पसंद थी। तो वो अपनी पॉकेट मनी से थोड़े से पैसे बचा के ना, मामा आपके लिए मैं भुट्टे के दाने लाया हूं। तो मुझे अच्छा लगता था कि ये इन चीजों हेल्दी चीजें खाता है। और अभी भी माशाल्लाह, ये शायद बचपन की ट्रेनिंग है, अभी भी मेरा बेटा मतलब कि इतनी हेल्दी उसकी अल्हम्दुलिल्लाह वो है कि वो जंक फूड ना खुद खाता है ना हमें खाने देता है। एग्जैक्टली माँ की तरबियत होती है। जैसे मैंने बताया ना, मेरी अम्मी इतनी मजे की घर में हर चीज बनाती थी, वो मुझे भी वही आदत है। हमें आदत ही नहीं है, इवन तंदूर की रोटी की आदत नहीं है, घर की रोटी बनती है। अच्छा, मेरी अम्मी पता है क्या करती थी?